Good morning, children. Good morning, sir. Very good morning. So, today I'm once again here to start a very impressive poem. The name of the poem is here Fear No More. Fear No More. It means you have not to be afraid and do not fear. Right? Means आप डरो नहीं. First of all, we'll be coming to know about the poet here. Here, the greatest poet of English language, William Shakespeare. William Shakespeare. He was born on 23 April 1564 and died on 23 April 1616. Right? He was considered as the most prominent poet of English language in all over the world, right? He was a poet, actor, and playwright. Did you understand? He has written tragedy. First tragedy, he has written Hamlet, Macbeth, Romeo and Juliet, and etc. He has written. And in comedies, he has written As You Like It and A Midsummer Night. Obviously, he was the greatest poet of England, right? He was born and brought up in England, right? Did you understand? But he was widely considered as the greatest, most romantic poet in England. Here in this poem, the poet highlights the true universal truth that everybody has to depart, everybody has to die one day, right? सबको इस धरती से छोड़ के एक दिन जाना है, चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितना एक राजा क्यों ना हो, सबको इस धरती से छोड़ के जाना है. Did you understand? Okay, come to the point. The poet says here in the first stanza, fear no more that heats the sun, no the furious winter rages, thou, here is thou and thine. दाइन का मतलब होता है योर. क्या होता है? हमारा ये दौ जो है पहले इंग्लिश में चलता था जब यू का खोज नहीं हुआ था और योर्स का खोज नहीं हुआ था. तो पोएट में भी यहाँ पे जो पोम में भी यहाँ पे दाउ और दाइन का मतलब है. देखो आपने बुक में देखिए आप लोग. डिड यू अंडरस्टैंड? दाउ और दाइन मतलब ये ऑल काइंड ऑफ एक्चुअली यू कैन से द वर्ड एंड ऑल काइंड ऑफ वर्ड दिस इज राइट. No, thou furious winter's rages, thou the only task has done. Home art gone and tend the wages. Golden lads and girls all must, as the chimney sweepers come to dust. As a chimney sweeper come to dust. Here in the first stanza, the poet says here, almost we have done our work. Almost we have done our work. So now, we have to leave from this world. The meaning of this word is a heat on the sun. Sun, it means धूप की गर्मी. क्या होता है? One more meaning is here furious winter's rages means violated cold. यानी कठोर ठंड की मार. पोएट यहाँ कहते हैं कि हमने जो है गर्मी को भी झेला, हमने बरसात को भी झेला, हमने ठंड को भी झेला. हमने क्या झेला? ठंड को भी झेला. Home art gone and teen wages they, gold lads and girls all must, as a chimney sweeper come to dust. वो कहते हैं ये सब कुछ हमने झेला. हमने कितना इस धरती पे नाम भी कमाया, कितना हमने इस धरती पे काम भी किया. अब हमें
समय आ गया है, द टाइम हैज कम दैट वी विल डाई, एंड एवरीबडी हैज टू डाई, राइट? द पोएट सेज हियर दैट एवरीबडी हैज टू डाई and they will mix in the same soil. They will mix in the same soil. Suppose मैं एक राजा हूं, आप एक प्रजा हो, या आप प्रजा हो, आप राजा हो, मैं प्रजा हूं। ऐसा नहीं कुछ चिमनी की भट्टी में जो काम करने वाली जो लड़की है और जो कुछ कूड़ा कचरा बीचने वाले जो लोग हैं, एक दिन वो भी इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे। और एक दिन जो इस देश का, पूरा दुनिया का, जो अपने आप में कहता है कि मैं एक राजा हूं, जो अपने आप में कहता है कि मैं बहुत बलवान हूं, जो अपने आप में कहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, जो अपने आप में कहता है कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूं, एक दिन उसको भी उस मिट्टी में मिल जाना है। जैसे गरीब मरता है, जैसे गरीब की प्राण जो चली जाती है, वो कितना धूप, कितना ठंड और कितने कामों से वो अब थक गया है, अब उसका एक ही चिंता है कि हमें धरती को क्या कर जाना है, छोड़ के चले जाना है। उस समय गॉड जो होता है, यानी लॉर्ड जो है, ये सोच के नहीं आपको प्राण लेगा, आपकी आत्मा को नहीं लेगा कि आप अमीर हो तो आपको 10 दिन के लिए छोड़ देगा। अगर आप गरीब हो तो आपकी आत्मा पहले वो चली जाएगी, आपकी आत्मा पहले वो लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। द डेथ इज फिक्स्ड of all the living organisms. Did you understand? So did you understand the first stanza of this poem? Come to the second stanza. चिमनी स्वीपर्स का मतलब होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में एक मीनिंग है, देखो, एज अ चिमनी स्वीपर्स a poor lady who works in a nearby actually चिमनी, जहाँ पे ईंट की भट्टी होती है, निर्मित होती है। एंड एक्चुअली इवन द वर्कर्स ऑफ द चिमनी, द वर्कर्स जो वर्किंग इन द चिमनी, दे डोंट वेयर द एक्चुअली गुड क्लोथ्स, वेरी गुड यूनिफॉर्म, राइट? सो उसको भी जाना है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है? ओके, कम टू द सेकेंड स्टांजा। Fear no more the frown of the great. Frown or great means होता है, it means anger of powerful. Anger of powerful मतलब बड़े लोगों की बहुत ज्यादा एंगर होती है। अब आपको डरना नहीं है, टीचर से डांट नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? बड़े लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, उसकी डांट आपको नहीं पड़ेगी, अब उससे भी डरना नहीं है। Thou art past in the tyrant's stroke. Tyrant stroke means you can say cruel rule. Cruel rule का मतलब होता है अत्याचार की मार। क्या होता है? अत्याचार की मार। Care no more, no cloth and eat. To thee the reed is as the oak. Reed means होता है weak, very weak plant. Reed means क्या होता है? हाँ, and oak का मतलब oak मतलब होता है a very strong plant. क्या होता है? Very strong plant. The scepter learning physics must all of these and come to dust. All of these come to dust. In the second stanza, the poet says here, fear no more the fawn, the great, the art, past of the tyrant's stroke, care no more to close and eat. Means you have not to worry. You have not to worry. और वो क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या चीज का चिंता नहीं करना है, आपको चिंता क्या नहीं करना है। यहाँ पे वो कहते हैं, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, ठीक है, उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी धरती को छोड़ के क्या करना है? जाना है। उसे भी धरती छोड़ के क्या करना है? जाना है। चाहे वो एक बिल्कुल रीड घास की तरह हो, चाहे ओक जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री होता है, समझ रहे हो? यहाँ पे कंपैरिजन किए हैं। एक घास जो होता है, यानी जो यहाँ पे रीड का होता है, बहुत ही स्मॉल प्लांट होता है जो काफी ज्यादा वीक होता है, और ओक का होता है एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसी तरह से हमारे लोग भी, कुछ लोग बहुत धनवान है, कुछ लोग बहुत ही गरीब है,
तो सबको इस धरती से क्या करना है, छोड़ के एक दिन जाना है। हमारे पास ना कपड़े होंगे पहनने के लिए और ना ही कुछ खाने के लिए होंगे। खाने की चिंता आपको नहीं करना, ना कपड़े पहनने की चिंता आपको नहीं करना है। To the readers of the as a whole, the scriptures, learning physics must all of this and come to dust. Here, if there would be a very sharp-minded person, if there would be a very sharp-minded person, if there would be the president of any of the country, he or she must die, and we will mix on the soil. Did you understand? We will mix in the same soil, whether you are a poor, whether you are a richer. Did you understand? चाहे वो आप गरीब हो, चाहे वो आप अमीर हो, वही मिट्टी में सबको मिट्टी का धूल बन जाना है। और उस दिन आप you'll forget all the criticism. सारी बुराइयों को भूल जाओगे आप लोग। कौन मेरा बुराई करता था, कौन क्या करता था, उस दिन कोई बुराई करने वाला आपको नहीं मिलेगा। आपको बुरा भला कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपनी क्या करेंगे, अपनी बॉडी को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चीज आपने किया वो चीज खत्म हो गया। आज के बाद तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा। बड़े बुजुर्गों की डांट भी आपको नहीं पड़ेगी, आपके शिक्षकों की डांट नहीं पड़ेगी। और पोएट यहाँ पे सेकेंड स्टांजा में ये भी कहते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा धनवान, चाहे बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसे भी इस धरती को छोड़ के जाना है, उसे भी इस मिट्टी में मिक्स हो जाना है एक दिन। Did you understand? समझ में आया है बच्चों? Okay, come to the last stanza of this poem. Fear no more the lightning flash. पोएट यहाँ फिर कहते हैं, विलियम शेक्सपियर once again says here in the third stanza that you have not to fear no more. भाई किससे? लाइटनिंग फ्लैश मीन्स होता है ब्राइट लाइटनिंग, बिजली की चमक से। किससे वो नहीं डरने बोलते हैं? बिजली की चमक से। जब हमारी प्राण जब चली जाएगी तो चाहे वो बादल गरजे, चाहे बारिश हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई साइक्लोन आ जाए, बॉडी ऐसे ही पड़ा रहेगा हमारा, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। कुछ सुनाई देगा क्या? कुछ नहीं सुनाई देगा। अगर हमें कोई बुराई भी करेगा उस समय तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर हमारी कोई, देखते हो ना, जब कोई व्यक्ति इस धरती को छोड़ देता है तो बुराई कम उसकी अच्छाइयों को करने लगता है। अरे भाई बुरा था लेकिन दिल का साफ आदमी था, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो हमें उसकी सच्चाइयों को जानना पड़ता है, क्योंकि देखो एक दिन मौत जो है सबको एक दिन झेलना है। उस दिन से सबको एक दिन जो है इस धरती से डिपार्ट होना है। ठीक है, इस धरती पे हम लोग अराइव हुए थे एक अच्छे काम करने के लिए, चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, इस धरती को छोड़ के चला जाएगा। चाहे वो जंगल का राजा शेर क्यों ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? विलियम शेक्सपियर यहाँ कहते हैं कि हमको डरना नहीं है। किससे भाई? लाइटनिंग फ्लैश, बिजली की यानी ब्राइटिंग लाइट, थंडरिंग लाइट से हमें डरना नहीं है। फिर कहते हैं नो द ऑल ड्रेडेड थंडरस्टॉर्म। थंडरबोल्ट मींस होता है तूफानी बिजली। क्या होता है? तूफानी बिजली। फियर नो स्लेंडर। स्लेंडर मींस होता है आपका, मींस अ पर्सन हु क्रिटिसाइज यू, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज यू, जो आपको बदनामी करते हैं। एंड कैंशियो रैश। रैश मीन्स होता है अनकाइंड, कठोर, और कैंसर का मतलब ब्लेम, मतलब आलोचना करते हैं। जो आपकी आलोचना करते हैं उससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। Thou has a finished joy and mourn. Joy means finished joy and mourn का मतलब होता है ended all happiness and sorrow. Ended all happiness and sorrow. यहाँ पोएट कहते हैं, देखो सबसे बड़ी पॉइंट है यहाँ पे, Thou has finished joy and mourn. Means the poet William Shakespeare says here that you have actually finished your all happiness, you finished your all sorrows, right? आपने जो आपकी जो खुशियां था वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपका जो दुख था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो डर किस बात की है? डर किस बात की है? All of us young, all of us must consign to thee and come to dust. Come to dust means consign. The meaning of the consign is here
हैंड ओवर मीन्स कमिट, मतलब अपने आप को सौंप देना, क्या करना। एंड कम टू डस्ट मीन्स डाई और रिटर्न टू डेथ। कम टू डस्ट मतलब होता है डाई और रिटर्न टू डेथ, एंड वी विल, आवर बॉडी विल मिक्स इन दिस सोइल। Did you understand? In the last stanza, the poet says here, we have not to fear from the criticism, right? And because we have completed all these happenings in our life, we have finished all these sorrows in our life. So now the time has come that we have to leave this earth. And what will happen? Right? We have to hand over to the Lord. किसको hand over करना है? लॉर्ड को। एक वर्ड यहां पे लिखे थे जॉन किट्स, वो भी एक बहुत ही रोमांटिक पोएट थे। डूम्स डे, क्या लिखे थे वो? डूम्स डे, इसका मतलब होता है द लास्ट, देयर इज नो एनी प्लेस, मैं बता दे रहा हूं, द लास्ट जजमेंट ऑफ गॉड, द लास्ट जजमेंट ऑफ गॉड। जब आप 12th में चले जाओगे ना बच्चों, तो वहां पे एक पोम पढ़ोगे, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसी में एक वर्ड है डूम्स डे। क्या है? डूम्स डे यानी कयामत का दिन। ये कयामत का दिन का मतलब ये उर्दू वर्ड है, ठीक है, कि सबको एक दिन जो है कयामत का दिन जो है यानी लास्ट डे ऑफ द लाइफ, द लास्ट जजमेंट ऑफ द गॉड, सबको एक दिन सफर करके जाना है। गॉड के पास सबका हिसाब किताब है, उस लॉर्ड के पास सबका हिसाब किताब है कि नहीं? आप अगर अच्छे कर्म को कर रहे हो तो उसका हिसाब उसके पास है, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो उसका भी हिसाब उस भगवान के पास है। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ऑल लवर्स अंग एंड ऑल लवर मस्ट कंसाइन टू दी एंड कम टू डस्ट, मींस एवरीबॉडी व्हेन दे कंप्लीट देयर एज, राइट? Did you understand? At the last day of the last day of our life, the last day of our life, we will mix in the same soil. Everybody, whether there would be a richer, there would be a poor. So everybody has to depart from this world. Did you understand? William Shakespeare has written more than 154 sonnets. Sonnets वो लिखे थे। Sonnets means होता है poem that is not more than 14 lines. Means when you read his sonnets na, then you will be having the same rhyming words. And 2 long narrative poems he has written in his career. William Shakespeare. So my children, through this poem, one thing I would like to tell you, that you have not to get afraid from anyone. जब तक आपके जीवन है तब तक आपको मेहनत करना है। और आपको लगे कि हमें डरना है, डरना क्यों है? डरना भाई, हम उस दिन नहीं डरेंगे ना। अभी तो आपको लग रहा है कि डर है, शेक्सपियर कहते हैं कि डरना ही नहीं है आपको, ठीक है? अपने लाइफ में कभी नहीं डरना है। और एक दिन अगर आप मौत से डरोगे तो मौत तो सबको एक दिन आनी है, चाहे वो भेड़िया क्यों ना हो, चाहे वो शेर क्यों ना हो, चाहे वो एलिफेंट क्यों ना हो। शक्तिशाली जानवर जो है, जानवर होता है, धरती का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन है? एलिफेंट है, ठीक है? चाहे उसको भी एक दिन मौत जो है आएगी, उसे भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, तो डरना नहीं है। और जब हम मर जाएंगे, जब हमारी बॉडी जब चली जाएगी, जब हमारे जो बिलवेड हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमें जो मानने वाले लोग हैं, हमारे जो फैमिली है, इंटायर फैमिली है, अगर हम लोग चले जाएंगे तो सिर्फ विलाप करते रहेंगे। और एक दिन हम अपने कस्टम के अनुसार, हिंदू कस्टम के अनुसार, क्रिश्चियन कस्टम के अनुसार, मुस्लिम कस्टम के अनुसार, और भी जितने भी रिलीजियस कस्टम के अनुसार जो है, हम लोग की जो बॉडी जो है वहीं पे चला जाएगा, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। तो उस समय कौन गरीब, कौन पापी, कौन दुष्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन राजा, कौन मंत्री, सब भूल जाएंगे। और सब की जो मौत होगी वो बिल्कुल सबकी होगी, और उसी मिट्टी में, उसी धूल में वो सब मिट जाएंगे और सब मिट जाएंगे अपनी जिंदगी में। So did you understand this, mom? Yes. Right? So yeah.
you have not to be fear in your life. William Shakespeare once again says that to all the children, to all of the people, that death जो है is a common thing in our life. Everybody has to face. Everybody has to face. मृत्यु जो है मतलब मृत्यु जो है सबको फेस करना है, ठीक है, इसलिए डरना नहीं है मृत्यु से। जब तक आपका जो है प्राण है तब तक आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है। Did you understand? So it is the end of the poem. See you in the next video. Thank you.